factorization method, and fourth one is the substitution method is that. So in which first method we have completed in yesterday's lecture, that is it is nothing but that was completed, it is nothing but direct method is there. So in case of direct method, what is the procedure here? In direct method, if the question is given in the limit, if we apply the limit directly and if you got the answer, then it is okay, it is the answer of that limit. Then afterward, there is a one theorem in that one. That theorem tells us that limit extend to a x raised to n minus a raised to n upon x minus a. Then it is equal to n into a raised to n minus 1 is the important one. And when it is used here, when the if you apply the direct limit and answer will be the 0 by 0, then in that case we apply the theorem here. Okay, so this one that we completed in yesterday's lecture, how to solve the limit by using direct method and then by using the theorem here. And the important is that when we have to use the theorem, when the answer is of the form 0 by 0 is there, then we apply the theorem. What is the theorem tells us here? When the variable x goes to the constant a, then the power of that variable and the constant are the same one, and in denominator there is a difference between them is there. If this happens, then we apply the direct formula here. How to apply that one? Power as it is, constant in place there is as it is, and there is n minus 1 is there. Okay. For example, we have taken the example limit extend to 3 is there. And then here x raised to 3 minus 27 upon x minus 3 is there. So it is already in that formula. What is the limit here? x tends to 3 is there. x कहाँ पे जा रहा? 3 के तरफ. Variable का power 3 और 27. This constant can be written as it is in the form of 3 raised to 3 is there. तो अब ये theorem को form में convert हो गया. x जहाँ पे 3 की तरफ जा रहा है, x का पावर और कांस्टेंट का पावर दोनों का पावर सेम है और नीचे उसका क्या है? डिफरेंस है. If this happens, then we apply the direct formula here. n means 3. In place of constant 3 is there. n minus 1 मतलब 3 में से एक गया. That is nothing but 2 is there. So we have completed in yesterday's lecture already. Now we proceed to the next method of that one. That is nothing but it is said to be the factorization method. Here now. This method is said to be the factorization method. So what is the importance here? Important here, see now. In case of factorization method, first it is important that when it is used. सबसे important ये है कि ये कब use करेंगे factorization method. तो जब direct method में अपन answer मतलब जब if you apply the limit, then again we got the answer 0 by 0. Then we have to use the factorization method. In the factorization method, what are the steps to solve the factorization method? In factorization method, we have to take one common term from numerator and one common term from denominator, and this common term gets cancelled, and now apply the limit. You got the answer for that one. मतलब क्या? सबसे पहले क्या factorization method कब यूज करेंगे? जब हम डायरेक्ट मेथड से लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर अगर से फिर से 0 by 0 जो फॉर्म में है और उस टाइम पे वो फार्मूला भी काम नहीं आ रहा. कौन सा फार्मूला? लिमिट एक्सटेंड टू a x का पावर n माइनस a रेज़ टू, ये भी उसमें नहीं बैठ रहा. तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करेंगे. लिसन केयरफुली हियर. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब यूज करने का, ये इंपॉर्टेंट है ना. जब पूरे टाइप कवर हो जाएंगे अपने, तो स्टूडेंट आर कंफ्यूज व्हेन यू हैव टू यूज. तो सबसे पहले थ्योरी पे इंपॉर्टेंस है, इस पे फोकस करो. फैक्टराइजेशन मेथड कब यूज करेंगे? जब हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे और आंसर यदि 0 by 0 आता है, तो उस टाइम पे पहले हम इससे सोचेंगे ये फार्मूले से, थ्योरम से. इससे भी नहीं आता होगा तो हम ये अप्लाई करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. उसके बाद सेकंड स्टेप फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या? तो इन फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू फैक्टराइज द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फैक्टराइजेशन करने से दोनों में एक टर्म कॉमन आता, तो कॉमन टर्म कैंसिल करेंगे और कैंसिल करने के बाद अब अगर से लिमिट अप्लाई करें तो अब आंसर 0 by 0 नहीं आता, मतलब कुछ भी आंसर उसका आता. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता दूं आपको. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल कि एक जनरल एग्जांपल लिमिट एक्सटेंड टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2. समझो मैंने ये एग्जांपल ले लिया. अब अगर से इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे अपन, दिस इज आवर L. इफ यू अप्लाई डायरेक्ट लिमिट हियर, देन व्हाट हैपेंस नाउ? x कहां पे जा रहा? x टेंड टू 2 हियर. डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो बड़ा, देखो क्या था आंसर. x का पावर 2, इस कारण से 2 का पावर 2 मतलब 4, 4 में से 4 गया 0 और डिनोमिनेटर में भी 2 में से 2 गया 0. 0 by 0 आया.
तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, एक तो ये फार्मूले में बैठेगा, ये फार्मूले में, या फिर इसको अपन फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसा देखो अभी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड टू 2, न्यूमरेटर इज x square minus 4, so we can write here 4 as a 2 square divided by x minus 2 is there. So here if you observe the numerator is nothing but it is of the form a square minus b square, and then how to write a square minus b square, it is nothing but a minus b, a plus b upon x minus square it is. ऐसा करने से न्यूमरेटर में एक टर्म, डिनोमिनेटर में एक टर्म कॉमन आ गई, तो ये कॉमन टर्म क्या हो गया, कैंसिल। अब लिमिट अप्लाई करेंगे x टेंड टू 2, तो ये 2 + 2 ये कितना हो गया 4। और इससे पहले बताया जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे अपन कि यहाँ पे x टेंड टू 2 है, x इज नॉट इक्वल टू 2 इज देयर, इट इज इंपॉर्टेंट वन। ये है फैक्टराइजेशन का कमाल। तो फैक्टराइजेशन का काम कब है, जब आंसर अपन डायरेक्ट लिमिट से 0/0 आएगा, तो उस टाइम पे एक तो फार्मूले से सॉल्व करके देखेंगे, फार्मूले से आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर फैक्टराइजेशन से करेंगे, फैक्टराइजेशन तो आंसर आना ही आना है। तो इट इज कॉल्ड एज द फैक्टराइजेशन मेथड। लिमिट को सॉल्व करने की ये दूसरी मेथड अवेलेबल है अपने पास। तो अब इस पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, वन बाय वन थोड़े एग्जांपल्स लगाएंगे इसमें। सो वेरी सिंपल वन, फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड फैक्टराइजेशन मेथड इज देयर। तो इसका अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे अपन टेक्स्ट बुक में का। ओके, so see now अब the next example in that one. So next example है limit z tends to 2, ये लेंगे इसके बाद में एग्जांपल ऐसा है इसका। सेकंड एग्जांपल इज दैट लिमिट z tends to 2 z square minus 5z plus 6 divided by z square minus 4 is there। अब देखो, अब मजा है, इसको अपन ने बोल दिया लेट l इज इक्वल टू दी वाला लिमिट। अब अगर से हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे ना z टेंड्स टू 2, तो बोलो 2 का स्क्वायर 4, तो यहां पे सामने बोला था 4 माइनस 5 दूनी 10 प्लस 6 डिवाइड बाय नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 4 गया 0, 4 माइनस 10 माइनस 6 प्लस 6 0/0। अब बोलो ये आंसर आ गया 0/0 के फॉर्म में, ठीक है, इट इज ऑफ दिस फॉर्म 0/0। तो अब डायरेक्ट मेथड में आपने देखे थे कि आंसर अगर से 0/0 आया, ओके, so in case of direct method if answer 0/0 then we apply the theorem here। अब बोलो यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, इसके ऊपर वो फॉर्म में ला ही नहीं सकते। कौन सा फॉर्म में, ये फॉर्म में ला सकते हैं क्या, ये फॉर्म में, कौन सा फॉर्म में हो, लिमिट x टेंड टू a x का पावर अपॉन x माइनस a, ये टर्म में अपन इसको नहीं ला सकते। आंसर डायरेक्ट लिमिट से 0/0 आया, तो अपने डायरेक्ट मेथड में क्या बोले कि वी अप्लाई द थ्योरम हियर, बट for such type of question we cannot apply the theorem here। तो यहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, इसकी वजह से हम दूसरी मेथड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो हाउ टू अप्लाई द फैक्टराइजेशन मेथड, सी नाउ। तो आप देखो क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के, सबको मालूम है, एकदम सिंपल है। फैक्टर सबको आएंगे इसके, यस, व्हाट इज द फैक्टर, 6 * 1 6, 6 के फैक्टर क्या आएंगे बोलो, इट इज नथिंग बट -3 - 2 इज देयर, राइट है। तो ये हो गया z स्क्वायर minus 3z minus 2z plus 6, and then it can be written as z square minus 2 square, this one, okay, this is nothing but my z is there, it is my 2, it is my 3 is there, okay। So now what happens now, it is equal to limit z tends to 2, इसमें से z कॉमन निकला तो z - 3, इसमें से 2 कॉमन निकला तो फिर से z - 3, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में, इसलिए a माइनस b और a प्लस b। नाउ व्हाट वी कैन राइट हियर, इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 2, एक ब्रैकेट में z माइनस 2, एक ब्रैकेट में z माइनस 3 अपॉन z माइनस 2 और z प्लस 2 इज देयर। अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड के हिसाब से ऊपर एक z माइनस 2 की टर्म, नीचे z माइनस 2 की टर्म, दोनों में से एक टर्म कॉमन, तो ये कॉमन टर्म आ गया। कॉमन टर्म आने के बाद लैगिस क्या करेगा, लैगिस मतलब लैगिस क्या करेगा, लिमिट अप्लाई करने का, लिमिट अप्लाई करें तो z टेंड्स टू 2, तो 2 में से 3 गया, 2 - 3 अपॉन 2 plus 2 is there, so what happens now, -1/4 is the answer for that one। It is the method of doing the question, it is nothing but it is your particular factorization method is there, okay, is such type of question। Now similarly we can take number of examples on this type here।
अब पूरे के पूरे एग्जांपल लेते नहीं बैठेंगे इसमें, तो बहुत से सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। सो यू प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। लिमिट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेंगे इसमें अपन। अलग टाइप के क्वेश्चन कैसे रहेंगे देख लो अभी यहाँ पर। जैसे कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़े अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगाएंगे। अब ये टाइप पे 2 से 4 क्वेश्चन से सिंपल है। एक तो टर्म न्यूमरेटर में देगा तो उसके फैक्टर निकालेगा, या फिर टर्म डिनोमिनेटर में देगा तो उसके फैक्टर निकालेगा। मगर फैक्टर निकालने के बाद एक टर्म दोनों में क्या आना चाहिए, कॉमन। कॉमन फैक्टर क्या होगा, कैंसिल। और अगर हम अब लिमिट अप्लाई करें तो आंसर कितना है, -1/4। पहले डायरेक्ट लिमिट आंसर कितना आ रहा था, 0/0 मींस नॉट डिटरमाइन और नॉट डिफाइंड देयर। सो इट इज द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ दैट वन। हम लोग अभी क्वेश्चन ऐसा आ गया इसमें, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 5y क्यूब प्लस 8y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3y रेज़ टू 4 माइनस 16y स्क्वायर इज देयर। अब देखो ये तो आप अपने दिमाग में लगा देंगे इसको सॉल्व करने का है। अब इसको डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो आंसर सबको मालूम है। y अगर से 0 की तरफ गया तो आंसर कितना था, 5 into 0 0 plus 8 into 0 0 0/0, आंसर will be 0। so we cannot use this one, है ना। so first of all you have taken let L is equal to limit y tends to 0 y cube plus 8 square 3y square minus 16 y square और y cube is there, y raised to 4 is there, 3y raised to 4। So here 3y raised to 4 is there। So what happens now here? डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा इसका, इट इज नथिंग बट लिमिट ये होगा 0/0। तो इसलिए अपन क्या करेंगे यहाँ पर, लिमिट y raised to 0 y cube y square y raised to 4 y square is there, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे 4 रहेगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, y cube और y square y raised to 4 दोनों में से y square कॉमन निकालो। तो ये मिल गया 5y plus 8 divided by y square कॉमन, तो ये कितना मिला 3y square minus 16 is there। ऐसा करने से न्यूमरेटर में y square कॉमन, डिनोमिनेटर में y square कॉमन, गेट्स कैंसिल। नाउ अप्लाई द लिमिट हियर। आफ्टर अप्लाई द लिमिट y कहां पे जा रहा है, 0 की तरफ, तो 5 into 0 0, ऊपर कितना बचा 8, नीचे 3 into 0 का स्क्वायर 0, मतलब कितना 16, 8 upon -16 दैट इज नथिंग बट -1/2 is there। तो इस तरीके से मतलब हमेशा फैक्टर निकालने का और आंसर लाने का ऐसा नहीं है इसमें अपन ऐसे भी कर सकते हैं अपने हिसाब से देखने का। तो दोनों में से y स्क्वायर कॉमन, नीचे से y स्क्वायर कॉमन, एक टर्म कॉमन आ गई कि कॉमन टर्म गेट्स कैंसल। नाउ अप्लाई द लिमिट, यू गॉट द आंसर फॉर दैट वन। सो दिस मेथड इज सेड टू बी द फैक्टराइजेशन मेथड हियर। हां, यहाँ पर एक और प्रश्न विचार लो, -1/4 कैसा आया, का आंसर -1/4 कैसा आया, कैसा आया अभी तो बताया ना। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें आंसर 0/0 है, इसलिए हमने इसको फैक्टर गिराया। फैक्टर गिराने के बाद इसके फैक्टर 6 का 6 के फैक्टर -3 -2, तो ये हो गया z कॉमन निकालो इसमें से। ये इसमें से तुमको कंफ्यूज हो रहा होगा, ये हमारा z है, इसलिए यू आर कंफ्यूजिंग इन दैट वन, ये अपना z है, ठीक है। तो ये z स्क्वायर -3 में z कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, फिर एक ब्रैकेट में z-2, एक ब्रैकेट में z-3 z-2 z, कॉमन टर्म कैंसिल। अब तुमने लिमिट अप्लाई करे z टेंड्स टू 2, तो यहाँ पे देखो z के प्लेस पे 2, ये z है, इससे तुम कंफ्यूज हो रहे हैं। यहाँ पे इट इज माय z, ये हमारा z है, ये ऐसा करता z के लिए, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होगा तुमको, ये z है, z और 2 में कंफ्यूज है, ओके, इट इज माय z। सो ये z में z के जगह पे 2 रखो, 2 में से 3 क्या है, तो कितना आ गया -1, और z के प्लेस पे 2 रखो, 2 + 2 मतलब कितना आ गया 4, -1/4। I hope you got that one, very simple one, ऐसे कोई खास बात नहीं है। इसके खाली फैक्टर निकालेगा, और ये 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b a + b, इसके फैक्टर निकाल के कॉमन निकालो, दोनों में से एक टर्म कॉमन आएगा, कॉमन टर्म कैंसिल करो, अब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, आंसर कितना है -1/4। ओके, इट इज आंसर। आया समझ में? और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर से पूछ सकते हैं। टेल मी इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी। यस, हाँ, तो ये तो बता रहा मैं, यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, कल से ये तो बोल रहा हूँ लिमिट का क्या देख रहे तुम, z is not equal to 2, जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे since z tends to 2, z is not equal to 2, से ये 2 के इतने करीब है
ये कंडीशन में लगेगा कि वो 2 ही है बोल के, तो यहाँ पे ये तो जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे ये तो अपन बोलते हैं यहाँ पे, और लिमिट के बेसिक में क्या बताया मैंने, z tends to 2, z approaches to 2, but z is not equal to 2. z 2 के करीब जाएगा लेफ्ट से भी और राइट से भी, मगर कोई भी कंडीशन में उसके इक्वल नहीं रहेगा, इतने करीब करीब जाएगा कि अपन बोलेंगे ध्यान दे भाई, that is equal to 2, इस जगह अपन ले सकते हैं। ये तो लिमिट का है, टेंडिंग टुवर्ड्स 2 बट नॉट इक्वल टू 2, उसमें 0.0000000 और लास्ट में जाके 1 लगा, तो इतना तो भी डिफरेंस रहेगा, मगर कौन सी भी कंडीशन में 2 नहीं रहेगा। तो लिमिट में यही मीनिंग होता है कि z टेंड्स टू 2 है कि z 2 की तरफ जा रहा है, मगर कोई भी कंडीशन में z 2 के इक्वल नहीं है, तब भी हम यहाँ पे z के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 - 3 अपॉन 2 + 2। आई होप यू गॉट दैट वन। लिमिट का पहले लेक्चर देखो, उसमें यही बताया मैंने कंसेप्ट कि ये है क्या एक्चुअल, ठीक है। सो नाउ आई होप यू गॉट दैट वन। और कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। तो अभी प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, ओके, ठीक है, चलो तो अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ऐसा है, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है उसमें लेने की जरूरत नहीं मुझे लगता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे इसमें ऐसा है, लिमिट ये इससे पहले बताया मैंने कि जब भी लिमिट अप्लाई करेंगे सबसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे कि z ये 2 की तरफ जा रहा है मगर z 2 के इक्वल नहीं है, तब भी हम z के प्लेस पे 2 रख रहे हैं। दिस वन, ये इंपॉर्टेंट है। So now next one is the next question in that one is the limit extend to -2, limit extend to -2 here, limit extend to -2, then extend to -2 is there, or -2x + 4 upon -2x - 4 upon x cube plus 2x square, x cube plus 2x square is there. Again it is a very simple question here, है ना, ये तो सिंपल है। तो सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो इस पे। इफ यू अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट हियर, व्हाट हैपेंस नाउ, x के प्लेस पे -2 रखेंगे, तो -2 into -2 इट इज +4, 4 में से 4 गया 0, नीचे -2 का पावर 3 -8, देखो ना सॉल्व करके देखो ना, ये नीचे आ गया -8 प्लस -2 का पावर 2 मतलब 4 होगा, 4 दूनी 8, -8 + 8, आंसर कितना है 0 पर 0। इसका मतलब वी कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन डायरेक्टली, सो वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। यहां से शुरू करेंगे अपन, ये अपना l हो गया। तो वो इसमें कॉमन कैसे निकालेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन निकालना। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, -2 कॉमन निकालो क्या, -2 कॉमन निकाला तो x - 2 ऊपर बच गया, x + 2 बच गया, और नीचे से x³ और x² है, x² कॉमन, x कॉमन निकाले तो x² कॉमन निकाला तो x + 2 इज द राइट। ठीक है, दो स्टेप में आंसर। डिनोमिनेटर में से x² कॉमन निकाला तो ये हो गया, तो ये कॉमन टर्म x + 2 ऊपर का, नीचे का गेट कैंसिल। नाउ अप्लाई द लिमिट, x पे जा रहा है -2 की तरफ, डिनोमिनेटर में तो कांस्टेंट है -2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में एक्सटेंड टू -2, तो -2 का स्क्वायर is nothing but 4 is there. Now the answer is nothing but -1/2 is there. So it is a method of doing such type of question by using factorization one. Now we proceed to the next example. अगले एग्जांपल की तरफ देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सभी क्वेश्चन ऐसा आ गया। सपोज क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप डायरेक्ट मेथड पे, डायरेक्ट मेथड पे क्वेश्चन समझो ऐसा आ गया कि यहाँ पे तुमको पूछा, समझो लिमिट एक्सटेंड टू -3, लिमिट एक्सटेंड्स टू -3, थोड़ा पढ़ा लेंगे, -3 1/x - 3 minus 9x upon x³ minus 27 is there. This one, it is the question given to us now. अब ये टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइजेशन की थोड़ा नया मेथड है, इसमें समझ के ले लो, तुमको नहीं आएगा पहले समझ के लो। सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करो, x goes to -3, so what is the answer of that one, 1/3 and then -3, right? है क्या, extend to 3 है क्या, -3 है, yes, extend to 3 is there, 1/3 - 3 1/0,
माइनस 1/0 इज नॉट डिफाइंड, मतलब 8 पे 9, 9 into 3 27, और ये 27 minus 27 0, again it is a infinite, infinite minus infinite you got infinite, so not defined, आंसर नहीं आ रहा। तो अब जब आंसर नहीं आ रहा, so we have to use the which method you have to use here, we have to use the factorization method। अब इस पे फैक्टर कैसे गिराएंगे ये इंपॉर्टेंट है, देखो जरा ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन है, आप इसमें फैक्टर कैसे गिराएंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो सी हियर नाउ हाउ टू फैक्टराइज दिस वन। बघा बोलो मध्ये मध्ये हे व्हायले का डिस्क्रीट व्हायले का, बघा आता इसमें लिमिट एक्सटेंड टू 3, सो व्हाट हैपन नाउ, लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, आंसर 0/0 आ रहा है, इसके हिसाब से आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, कैसा 1/x-3 9x अपॉन, ये फार्मूला सबको मालूम है, ये 27 नहीं है, ये है तुम्हारा 3 का पावर 3, राइट है, कैन वी राइट 27 एज अ 3/3, यस। So now it is formula of a cube minus b cube. Tell me the formula for a cube minus b cube. It is a formula nothing but a minus b, then a square plus ab plus b square is there. It is nothing but 9 is there. Okay, it is the correct one. Right? 27 can be done as 3 का power 3. So it becomes थोड़ा बड़ा लिखता थोड़ा large. ये है x cube minus 27, right? तो ये 27, this 27 can be done as 3 का power 3 is there. So now it becomes here, ये अपना x minus 3 is there. ये x minus 3 as it is. Now this becomes the formula a cube minus b cube. So we can write here a minus b means x minus 3 and then a square plus ab plus b square means x square plus x plus 9 is there. इसको भी थोड़ा अच्छे से लिखता। रिकॉर्डिंग में नजर नहीं आ रहा है, इससे बहुत से बच्चों की कंप्लेन है, इसकी वजह से थोड़ा वाइड लिखेंगे अपन। a minus b a square plus ab plus b square means 9 is there, ये टर्म हो गया। अब देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये x minus 3 यहाँ पे भी, x minus 3 यहाँ पे भी है, तो आप क्या करेंगे, हम ये टर्म का निकालेंगे एलसीएम। किसी को एलसीएम निकालने आता होगा तो ये तीनों का टर्म का डिनोमिनेटर एलसीएम बोलो, x minus 3 दोनों में, x minus 3 एक बार आएगा, इसका एलसीएम देखो, एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म्स, इसका एलसीएम कितना आएगा x minus 3, ये टर्म दोनों में कॉमन है इसलिए एक बार x minus 3, ये टर्म कॉमन नहीं है तो ये टर्म एज इट इज, तो इसका एलसीएम आ गया इतना, राइट। द एलसीएम ऑफ दिस टू टर्म इज नथिंग बट दिस वन। अब जो भी एलसीएम आया वो एलसीएम से ये टर्म को और ये टर्म को मल्टीप्लाई और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखो अपन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर जगह कम है, यहाँ पे एकदम डिटेल में बताना कैसा सॉल्व करेंगे एक क्वेश्चन, सी एंड नाउ। So listen carefully here, how to solve this one. अब ये जो एलसीएम आया, ये एलसीएम से दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, मतलब कैसा, देखो फिर जगह ज्यादा लगेगी आपके लिए, यहाँ लिखना मैं इसको लिमिट एक्सटेंड टू 3, तो कैसा बता रहा है यहाँ पे 1/x minus 3 को हम क्या करेंगे, ये टर्म से एलसीएम से मल्टीप्लाई, x minus 3 x square plus x plus 9 मल्टीप्लाई और डिवाइड। एक काम करो ना, सबसे सिंपल एक काम करो, ये टर्म से अपन क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो दोनों में क्या आएगा, कॉमन, तो डिनोमिनेटर दोनों का क्या होगा, एक ही हो गया, मतलब कैसा यहाँ पे लिखा है, तो स्टेप पूरे पूरे तो आपने कुछ काफी होंगे। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3, 1/x minus 3 into ये एलसीएम मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, ठीक है, और डिवाइड करने के बाद दोनों के डिवीजन में क्या आएगा, सेम यही आएगा, दोनों के डिवीजन में x minus 3 x square plus x plus 9 दोनों के डिवीजन में इनटू माइनस माइनस, फिर ये टर्म कम गिर गया अपने पास बोर्ड कम होने की वजह से, माइनस ये टर्म क्या है 9x, ऐसे लिखा पूरा है 9x अपॉन x minus 3 x square plus x plus 9 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यही एलसीएम से, दिस वन इज इंपॉर्टेंट वन। अब बोलो ये स्टेप समझिए क्या, ये स्टेप समझिए तो अपन आगे जाएंगे। क्या करें अपन इसमें से, ये दोनों टर्म का एलसीएम कितना आया, x minus 3 मतलब एलसीएम कितना आया बाहर x minus 3,
और x स्क्वायर प्लस x प्लस 9 इसको कोई जोड़ी नहीं तो एज इट इज। तो ये एलसीएम आया आपके पास x माइनस 3 x स्क्वायर प्लस x प्लस 9। जो एलसीएम आया तो ये एलसीएम से ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई और ये दोनों टर्म को क्या करें अपन ने डिवाइड। तो दोनों के लिए डिवीजन में सेम है, इसलिए दोनों के डिवीजन में एक ही आएगा। ये टर्म को पहले एलसीएम से मल्टीप्लाई करें, ये एलसीएम से, फिर ये टर्म को मल्टीप्लाई करें एलसीएम से। आप देखो क्या क्या करेंगे और क्या क्या बचेगा। ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ। Now it is completely gone, it is completely gone. ये पूरा complete काम हो जाएगा, सिर्फ इतना रहेगा। So क्या बच गया देखो अभी। So remaining will be here. Limit x tends to 3. देखो x square plus x plus 9, it is my 9 minus क्या बचा 9x ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या बचा ये पूरा x minus 3 x square plus x plus 9 is there। ठीक है, अब बोलो क्या करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। सॉल्व कैसे करेंगे देखो अभी यहाँ पर। हाउ टू सॉल्व दिस वन, वेरी सिंपल वन। सबको आएगा सॉल्व करने के लिए, आएगा कि नहीं ये बोलो। यस टेल मी व्हाट वी कैन से दैट हियर। यहाँ पे कुछ टर्म्स रह गया क्या, 1 मिनट आई हैव टू चेक हियर। ये बच्चे बीच जो ज्वाइन मत हो चलिए ना। व्हाट इज द फार्मूला हियर, a cube minus b cube, a minus b, a square ऐसा होता है कंफ्यूजन। देखो फार्मूला क्या है, a cube minus b cube का फार्मूला बोलो, a minus b a square plus ab plus b square। तो ये फार्मूला यहाँ पे हो गया x cube minus 3 का क्यूब, फार्मूला में डाल जरा x minus 3 a स्क्वायर मतलब क्या हो गया x स्क्वायर, a भी रह गया ना, a भी मतलब कितना 3x और b स्क्वायर मतलब कितना 9 इज देयर। तो कोई बात नहीं, ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं। ये यहाँ पे 3x इज देयर, यहाँ पे भी 3x, यहाँ पे 3x तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना आएगा 3x, अच्छे से लिखेंगे इसका पर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज देयर। ओके, यहाँ पे भी 3x plus 9 is there. Again it is 3x plus 9 is there. So what happens now here? अब यहाँ पे कितना बच गया फिर x square plus 3x plus 9 minus 9x is there. है ना, कोई भी नहीं बताया इसमें कहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चे। आया समझ लो, फार्मूला a cube minus b cube में यहाँ पे मिस्टेक था। a cube minus b cube का फार्मूला a minus b, a square मतलब x का स्क्वायर प्लस ab तो 3x और प्लस b का स्क्वायर मतलब 9। Now we proceed to the next one. अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, इसको मिटाएंगे आप। तो बोलो क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया लिमिट एक्सटेंड्स टू 3। अब बोलो ये कितना मिला, अरे तो बहुत सिंपल काम हो गया। देखो जरा आपने कवरेज क्षेत्र में आ गया 3x में से 9x गया माइनस 6x प्लस 9 अपॉन x माइनस 3 और ये कितना x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज देयर। अब तो ये आपके कवरेज क्षेत्र में आ गया। यस व्हाट एवर्स नहीं पॉज देतो का थांबतो ये वीडियो बघा। यस इज देयर प्रॉब्लेम कोणाला अडचण आहे का व्हिडिओ मध्ये। यस टेल मी नाउ। नाही सर नाही अडचण सर खाली काहीच अडचण नाही सर। अडचण नाही राहिलेत ना, मग ते मुलं काहीतरी लिहायला म्हणून मग ते झालं। पण ठीक काय अडचण नाही, पण काय अडचण आहे का तुम्हाला हे समज नहीं सर। सो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 ये तो फैक्टर पार्ट है। फैक्टर निकालेंगे तो इसमें से एक टर्म और इसमें से एक टर्म क्या आएंगी कॉमन, कॉमन टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल और यू गॉट द आंसर फॉर दैट वन। द फैक्टर मीन्स पढ़ून दाखवतो तुम्ही पढ़ून दाखवता व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ दैट वन। आई थिंक x minus 3 and minus 3 क्या आएंगे दो के फैक्टर बोलो minus 3 yes what are the factors of 9 into 1 9। अरे काय वाजते टाइम पास ये डायरेक्ट है तुम्हारे को। देखो लिमिट एक्सटेंड टू 3, टाइम पास करने की जरूरत नहीं। इसको देखने के बाद ये समझ में आ रहा है क्या, ये है x माइनस 3 का स्क्वायर राइट राइट इट इज नथिंग बट x माइनस 3 का स्क्वायर। देखो ना
देखो a माइनस b के स्क्वायर तरफ से x स्क्वायर नाइस सर। नाइस। हाँ माइनस यार। ab मतलब कितना 3 into 2 times 3x मतलब कितना 6x plus 9 और x minus 1 कॉमन टर्म वाला x minus 3 एक कैंसिल झाला इथून एक कैंसिल झाला नाव अप्लाय केली मी x into 3 अप्लाय केलं तर एवढा करून आपल्याला 3 मधून 3 गेलं किती आन्सर आला 0 बाय आता याच्यात देतात नाही गेलो तरी चालेल पण तुम्हाला दाखवतो मी 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 3 त्रिक 9 प्लस 9 म्हणजे 27 0 बाय 27 म्हणजे किती आंसर शुड बी द 0 यार एक बार याद रखो आंसर 0 आ सकता मगर आंसर 0 बाय 0 पॉसिबल नहीं है आया क्या समझ में आंसर 0 आया तो लिमिट का आंसर 0 रह सकता मगर 0 बाय 0 मींस नॉट डिफाइंड तो यहाँ पे आंसर कितना आया 0 ओके ये चलता कोई प्रॉब्लम नहीं वेरी सिंपल वन तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये थी यहाँ पर कि हाउ टू टेक द एलसीएम ऑफ दैट वन एलसीएम कैसे निकाला था एक बार फिर से देख लो बहुत से बच्चे कंफ्यूज दिख रहे हैं देखो ये दो टर्म्स तीन टर्म ऐसे थे x - 3 और x² + 3x + 9 तो एलसीएम कैसे लेते हैं अपन जो कॉमन है दोनों में वो एक ही बार ये कॉमन टर्म एक बार और जो कॉमन नहीं है वो उसको अपन बाजू में ये कॉमन नहीं था x² + 3x + 9 ये कॉमन नहीं था तो ये हो गया पूरा उसका एलसीएम तो जो भी एलसीएम आया वो एलसीएम से क्या करेंगे अपन ये टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड अगेन यही टर्म को मल्टीप्लाई और क्या करेंगे डिवाइड तो दोनों का डिवीजन में एक ही टर्म आएगा तो यहाँ पे एकदम एकदम सिस्टमेटिक बताया हर एक स्टेप सिंपल सिंपल करके बताया अपन ने सॉल्व करके तो मल्टीप्लाई करने से ये कैंसिल होगा सिर्फ ये बच गया यहाँ पे पूरा कैंसिल होगा सिर्फ 9x बच गया इसको सॉल्व करने के बाद ये इस प्रकार से और इसको अपन देखेंगे तो ये अपनी पहचान का है ये x - 3 का ब्रैकेट का होल स्क्वायर इज दिस मींस इट इज नथिंग बट a² - 2ab + b² is there okay so this one a very simple one so this type of question can be solved by using which method factorization method ये question factorization method का था I hope you got that one समझ में आया ऐसी उम्मीद है उसके बाद ये टाइप का अगला क्वेश्चन हम देखेंगे if you are interested नहीं तो फिर हम आगे जाएंगे अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है नहीं तो फिर अपन आगे जाएंगे क्या करेंगे let's tell me now क्लास क्वेश्चन देखेंगे इसकी ठीक है समझो क्वेश्चन कभी ऐसा आ गया which type of question is there ठीक है तो क्वेश्चन इज वेरी क्लियर देखो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया इस पे तो कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड में ये भी सिवाय तुम्हारे को डिफरेंशिएशन नहीं समझेगा लिमिट जब तक नहीं आता उसको डिफरेंशिएशन नहीं आता कंटिन्यू तो एक बार का आ जाएगा तो लिमिट आया तो कंटिन्यू आता सब एक दूसरे पे डिपेंड है these chapters are dependent on one another once you got the limit then you got the continuity then you got the differentiation तीनों एक दूसरे पे डिपेंड है इस वजह से अपन लिमिट इतना डिटेल में देख रहे हैं डिटेल में मतलब थोड़ा एग्जांपल एक दो लगा रहे ज्यादा तो नहीं अपन ठीक है आप मेरे ख्याल से इसमें एग्जांपल बस हो गया टाइम पास करने के लिए तुम्हारा नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे इसका नेक्स्ट टाइम देखेंगे इट इज सेड टू बी द rationalization method or method of rationalization मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन इज देयर और अगर से किसी को प्रॉब्लम है तो साइमल्टेनियसली क्या करो लिमिट के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करो जो प्रॉब्लम है वो अपन ग्रुप में डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन नहीं आया उसका फोटो निकाल के भेजो उसको अपन सॉल्व करेंगे ठीक है इससे अपनी प्रैक्टिस भी होंगी और कैसे सॉल्व करने का वो समझ में भी आएगा ओके तो नाउ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में रैशनलाइजेशन में देखेंगे ये बहुत सिंपल है अभी तक आपने देखा डायरेक्ट लिमिट में अगर से डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो यू गॉट द आंसर सेकंड वन यू आर सीन हियर फैक्टराइजेशन में क्यों व्हेन वी अप्लाई द फैक्टराइजेशन व्हेन द आंसर इज ऑफ द फॉर्म 0/0 इज देयर तब हम क्या अप्लाई करते हैं फैक्टराइजेशन इज देयर उसके बाद रैशनलाइजेशन का यूज करेंगे जब टर्म अंडर रूट पे अंडर रूट ऑफ 0 - 0 अपॉन 0 फिर से मतलब 0/0 के फॉर्म में आएगा मगर टर्म्स रूट में रहेगा वो टर्म्स न्यूमरेटर में रह सकता और डिनोमिनेटर में भी रूट में टर्म्स अगर है समझो दिस वन इस प्रकार से then we have used the formula is the rationalization method is there so देखो यहाँ पे सबसे important one how to apply and when to apply the rationalization method इसके एग्जांपल देता उससे तुमको समझ में आएगा जैसे कि पहले एग्जांपल है लिमिट x टेंड टू 0 फर्स्ट एग्जांपल लिमिट x टेंड टू 0 this one under root of 6 plus x square minus root 6 upon
x और लिमिट एक्सटेंड टू कहां पे जा रहा, 0 की तरफ जा रहा। सो सबसे पहले पहला काम अप्लाई द डायरेक्ट लिमिट एंड गेट द व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट वन। एक्सटेंड टू 0 अप्लाई करने के बाद ये आ रहा 6 0 + 0 0 मतलब √6 में से √6 गया तो आंसर कितना आया 0 और नीचे x कहां पे जा रहा है एक्सटेंड टू 0 ये कौन से फॉर्म में आया अगेन ऑफ द फॉर्म 0/0। अब 0/0 है तो आपके पास नेक्स्ट मेथड क्या थी, एक तो फार्मूला, ये फार्मूला में बैठता क्या नहीं, दूसरा मेथड क्या फॅक्टरायझेशन मेथड। मला सांगा तुमच्या दम असतील तर हे रूटचे फॅक्टर पडून दाखवा। नाउ दिस टर्म्स आर इन द स्क्वायर रूट सो वी कैन नॉट फैक्टराइज इट। तो अब इसके फैक्टराइजेशन नहीं गिरते इसलिए तीसरी मेथड का डेवलपमेंट हुआ। तो मतलब कौन सी मेथड ऑफ रैशनलाइजेशन इज देयर। रैशनलाइजेशन का यूज करके स्क्वायर रूट वाले टर्म को अपन रियल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे।